हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। ये लाइव ऑली बोर्ड पर अभी अवेलेबल है और ये 31 दिसंबर मतलब इस साल का लास्ट डे तक अवेलेबल रहेगा आपका। और चलिए इसको स्टार्ट किया जाएगा इस 4 सेकंड के ऐड के बाद। 3 2 1 गो। लेट्स सी व्हाट्स द स्कोर। सो आई विल हैव टू skip this section. Sporadic novel. What is the opposite option that selects the meaning of the word verb novel? Familiar is innovative, repetitive. Repetitive, I think it will be repetitive. Where is the novel? United States has introduced an experience with a wide range of novel legal schemes to regulate semiconductor. नोबल मतलब तो तब तो ट्रेडिशनल, इनोवेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। अब तो इनोवेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए, ऑन द अदर हैंड मोमेंट, अच्छा इसको ये करना है। द मोस्ट ऑफ इट, चलिए ई के बाद सी होगा, कहीं पर है ई के बाद सी नहीं ना। द मोस्ट ऑफ इट ऑन द अदर हैंड बी से स्टार्ट होगा। मोमेंटम इन एनी कैंपेन इज वैल्यूबल बट द रेबल्स आर right to make the most of it. Okay, so it's correct. The 2017 Nobel Prize for Medicine was awarded in the discovery of how our circadian rhythms are controlled, but what lights goes it shed on the cycle of life. Was awarded in the discovery of how our circadian rhythms are controlled. अच्छा, एक पार्ट एरर भी है बोल रहा है। अच्छा, सॉरी मेरा गलती है यार। ABC. Then 2017 Nobel Prize for Medicine was awarded in the discovery of ABC. C को रखा है ना क्या? ये भी तो कनेक्टेड वर्ड है, ये तो रहेगा, ये गलत नहीं है इसमें से कुछ भी। How our circadian rhythms are controlled, but what light goes it shed on the यही है ना, डी कोई काम का नहीं है। बट व्हाट लाइट डज इट शेड ऑन द साइकिल ऑफ लाइफ। देयर आर इफ देयर आर पार्ट ऑफ मोर चूज द ऑप्शन दैट पार्ट विद नो एरर। अच्छा, कौन सा ऐसा पार्ट चूज, अच्छा ऐसा पार्ट को चूज करो जिसमें कोई एरर ही ना हो। मतलब एक पार्ट में एरर है। द 2017 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज अवॉर्डेड इन द डिस्कवरी ऑफ हाउ आवर कंट्रोल, बट व्हाट लाइट डज इट, डी गलत है, शेड ऑन द cycle of life. French scientist has been criticized. French scientists यहाँ पर ऐसे है तो हैव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। For cancelling the death of patient, concealing the death of patient at the center of breakthrough in which consciousness was restored to a man in a persistent vegetative state. ठीक है। Ending on a hopeful and inspirational high. एंडिंग ऑन ए, एंडिंग विथ ए होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं।
Ending on a hopeful and inspirational high, perhaps it was fitting that by the end of the conference, the rain that has lasted the majority of the day has stopped, the clouds has begun to part, and the sun was slowly coming into view. Coming into view. Okay. So ending on a hopeful. ये तो मुझे नहीं लग रहा होना चाहिए, परहैप्स शायद इट वाज यहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एंडिंग ऑन द होपफुल एंड इंस्पिरेशनल हाई, तो एंडिंग के बाद यहाँ पर ऑन होपफुल, यहाँ पर दो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ऑन मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। खैर, ये क्या आ गया भाई, सॉरी। वी स्पेंड टाइम विद क्या करना है इसका, पॉलिटिकल आर्टिस्ट हु वॉज, वी स्पेंड टाइम विथ अ पॉलिटिकल आर्टिस्ट who was reasonably wealthy. He had an assistant who handled his commercial. हैंडल नहीं, हैंडल होना चाहिए, ये गलत है। The manager together with his team has been working on the project for weeks. I'm open to work on this. I'm committed to work. Looking forward to working on this excitement. Despite of the weather being inclement, they decided to go ahead with the picnic. उसके बावजूद भी, इंस्पाइट, इसके अलावा, डिस्पाइट द इंस्पिरेशन, although the weather was not being inclement, ये भी तो करेक्ट ही कहीं ना कहीं है, कोई बात नहीं, एक रॉन्ग हो सकता है। आफ्टर वीक्स of hard work, it was finally time to receive her pay and enjoy the fruits of her labor. ये लेबर ऐसा कब से होने लगा, लब्बर। Trust was shattered when he attempted to DECEI, be deceive, धोखा देना, his friends and his cleverly crafted lie, झूठ। Trust was shattered, SHATERED या TERRED, when he attempted that to deceive his friends with a cleverly crafted lie. FOREIGN होता है। The storm brought heavy rain, thunder and lightning. किधर है? Proponents of meditative immersing, अच्छा, proponent of C से स्टार्ट होगा, immersing practice of various sorts taught meditation, CAB, as a way of, सी अपनी जगह पर सही है। Proponents of meditative practice of various sorts taught meditation as a way of immersing oneself into a ये एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मेडिटेशन नहीं होगा, मेडिटेटिव होगा। Persist walking from nightmare is a repeatedly walking from nightmares, चलो, walking from the nightmares is a shock to both body and mind, heartening and result of frustrating and emotional distress can persist well into the day.
lunch was in a cafeteria the size of football field. तो ए मतलब CAB, lunch was in a cafeteria the size of the football field where women with hair nets and so regulated the movement of the couple of the people. ठीक है, each of these मतलब यहाँ each of these are policy relevant topics which where economists have brought modern technique, okay, and good data to bear. Initially scientists thought a possible small rise in the Earth's temperature, but scientists could not envision the coming. ठीक है, मतलब कल्पना करना. Today's education is recognized as a fundamental right under the Right of Education Act 2009. However, failure in implementation and policy differences have rendered it less effective. पॉलिसी का क्या नेगेटिव हो सकता है? पॉलिसी क्या हो सकता है? पॉलिसी गैप्स, पॉलिसी डिक्लेरेशन, today's education is recognized as a fundamental right under the Right to Education Act. However, failure in the implementation, मतलब पहले तो जो एक्ट है फंडामेंटल, एक एक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल एजुकेशनल राइट. ठीक है, ये एक्ट है. ये फेल इसलिए हुआ कैसे फेल हुआ? पहला तो फेल हुआ, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. एंड पॉलिसी डिक्लेरेशन हैव रेंडर्ड इट लेस इफेक्टिव. However, failure in the implementation and policy differences, policy reforms, policy gaps, policy declaration have rendered it less effective. सोचना पड़ेगा. For us to develop sustainably, it is complementary. It is dash we realize the ideal containing in the law. For us to develop sustainably, it is sufficient we realize the ideals contained in the law. The lack of morality and compassionate value has resulted in social and political disagree towards children. The lack of morality and compassionate value has resulted in the social and political disgrace towards children. We must work towards a common goal which would be reasonably equitable and comparative and dash in spirit, and quality in spirit, just in spirit, scarce in spirit, intuitive होगा. As they mature into the adults, their empathy and compassion will change into an unprecedented level of global and sustainable action and vigilance. बाद में देखता हूँ बाकी सब. Which of the following statement highlight the potential of the collaborative alliances mentioned in the क्या बता? Which of the following statement highlight the potential of the collaborative alliance mentioned? Collaborative alliance कहाँ पर है?
Coordination and cooperation among the governments and chief member from the 4 members in the supply. कोऑर्डिनेशन का ही बात किया है. Holding the occasional meeting involving ठीक है. ये मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न एक्सप्रेस बाय द ग्लोबल चीफ मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द रेगुलेशन. क्या वो कौन किया था? विच आर द प्राइमरी कंसर्न एक्सप्रेस बाय द ग्लोबल चीफ मैन्युफैक्चरर्स. Are not necessarily complaining about regulation. They are being agitated by the uncertainty arising from the regulation. Necessary for express. यहाँ पर क्या है ना, ग्लोबल चिप मेकर्स आर नॉट नेसेसरीली कंप्लेनिंग अबाउट रेगुलेशन. ठीक है. दे आर बीइंग एजिटेटेड by uncertainties arising from the regulation. The continuing innovation success uncertainties as much as possible. ठीक है, यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट बताना है, टाइम कम है. विच हैव द माइक्रो विच व्हाई हैव द माइक्रोचिप्स बिकम क्रूशियल इन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन चाइना एंड यूएसए. डिजिटली सब कुछ. फार्मर परमिशन आर्टिफिशियल हैममेड चिप्स ऑन मोर प्रोडक्शन में मेनी एरियाज. यही है. मुझे तो एज पर द फैसिलिटी तो करेक्ट अबाउट द. अरे यार, ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस से डाटा रिगार्डिंग द स्टेटस सेमीकंडक्टर कंपास. ये 3 चीज़ मिलाते मिलाते मैं थक जाऊँगा. हैव 4 फेवरेट 4 अलायंसेस. डिस्कस द फैसिलिटी द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट. लाइकली द इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड नेशन. कौन कौन था? यूनाइटेड नेशन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान. एनहांस कोऑर्डिनेशन within the semiconductor supply chain. It has transferred definite organization its initiation to participate country. It has transformed into a definite organization. It is 84% शेयर ऑफ ग्लोबल कंसंट्रेशन. कितना शेयर है भाई इसके पास? Since its inception, several meetings have been held. Regular. ठीक है. रह क्या क्या इधर एक इजी पीजी था. ये today's education is regarding recognized as a fundamental. However, failures in implementation and the policy gaps. या फिर पॉलिसी अनाउंसमेंट ना मत करो यार, मुझे बार बार डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों. पॉलिसी गैप्स हैव रेंडर्ड इट लेस इफेक्टिव. पॉलिसी गैप्स होगा. कौन सा? बी. फॉर हर्स टू डेवलप सस्टेनेबिलिटी इज सफिशिएंट. इट इज imperative we realize the ideals contained in the law. It is चलिए, अब सही है मेरा सारा कुछ. ये थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने इसको स्किप किया. बाकी ठीक है, यही हो सका. नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो. और क्वांट्स है तो 2, 3, 4, 5, 30, 35, 15, 16, 17, 18, 180. कितना होता है? इंटू 3.5 प्लस इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 + 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5. डबल भी हो सकता है.
तो इसीलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। 5 साढ़े 5 8 9 कितना था 8 और 9 9, तो फिर 9 दूनी 18 2 20 सही है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 9, फिर 2 3 3 दूनी 6 2 8, 1 पे 2 हो रहा है, 2 पे 3 हो रहा है, 3 पे 4 होगा, तो 24 4 28 हो जाना चाहिए। नहीं कुछ और चीज़ है, रुक जा, 2 1 2 प्लस 1 3 3 दूनी 6 2 8 24 और 3 27 27 और 4 27 और 4 16 4 8 4 12 अरे यार 27, हाँ सही है 27 ही होगा। यहाँ पर -8 हुआ है, तो प्लस हो गया आपका कितना 16, फिर माइनस कितना होगा 4 2 6 14 24, 8 8 का गैप है, प्लस हो जाएगा 2 2 4 6 3 9, तो माइनस 40 हो जाएगा। 40 को माइनस करोगे तो 54। यहाँ पर आपका 15 का गैप है, यह 3 33 का गैप है, और फिर 9 3 12 8 8 19, अबे तरीके 5 5 2 4 3 1 15 का गैप है, 3 4 3 7 33 का गैप है, 9 3 12 8 1 19 का गैप है, 5 4 37 7 2 9 9 3 12 229 अगर लेके चले तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या था 19 4 5 4 9 23, तो 23 अगर इसको 23 कहाँ से कहाँ 23 ता 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 मुझे लग रहा है यही होगा, मैं इसको फिर बाद में चेक करूँगा। ये कुछ बालक है, रमेश रानू रिंकू सबका प्रॉफिट बिजनेस इतना 28 में 14 12 15, अरे यार ये सब क्यों, अभी तो इतना कुछ है, अरे हाँ यहाँ 4 4 10 5 6 7 8 4 3 7 0 8 9 17 5 2 5 2 है, और 289 17 प्लस इक्वल टू 9 5 14 9 1, तो कितना है 45 8 7 15 4 2, 28 का कितना होता है 784, 6 6 6 18 12 16 16 2 8, कितना हो जाएगा 20 4 20, गलत कर दिए 4 16 2 6 6 6 18 3 3 दूनी 6, इधर 12 है, इधर 16 16 2 16 16 32 16 2 8 4, तो 2 4 का 16 या 2 होना चाहिए। चार 2 का ही स्क्वायर तो होता है 4, 140 28 8 6 1 15 8 5 13 76 8 1 8 8 5 13 7 175, फिर 2 दूनी 4 4 4 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 64 4 4 8 6 6 12 60, फिर 4 16 4 5 7, फिर 180 152, 5 3 8 3 2 5 5 14 1 1 2 180 5 8 6 14 65,
गलत इसलिए हुआ क्योंकि 18 8 7 15 2 227 पॉइंट था, मेरा आँख से निकल गया था वो। 72 80 2 8 7 152 25 और 8 225। ये कितना, ये प्लस 250 में से 8 हो जाएगा 242 हो जाएगा। ये क्या है, 240 में से 60 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा फिर ये तो 256 98 8 14 9 5 14 15 2 1 3 और 260 4 9 6 15 94 हो जाएगा इधर। यहाँ क्या बॉयज़ गर्ल्स क्या किया है। एवरेज नंबर ऑफ पेन्स कलेक्टेड बाय 4 बॉयज से 720, 4 बॉयज से 720 हो पाया। 9 बॉयज से हो पाया है 450। तो 5 2 7 9 7 4 11 9 13 90। ये सब तो अच्छा शुरुआत हो गया यहाँ से। इसको मैंने ठीक है बाद में करूँगा। 14 12 15 ये था, सॉरी 14 12 15 और 28 16 14। ये क्या प्रॉफिट है, अच्छा सॉरी 14 12 15 7 दूनी 14 8 दूनी 16 14 दूनी 28 14x बाई ये कितना था 8x इक्वल टू 14 बटे, अरे यार 14x बटे 8x इक्वल टू 14 बटे 12। ये कट गया 4 1.5। क्या करना है 1.5 मतलब 15 से स्टार्ट होगा, तो 15 से देखिए स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया। और बाकी 100 सैलरी था, 20% रेंट में लगा दी, 12% उसका क्लोथिंग में लग गया, 25% ऑन अदर्स लग गया, तो 5 तो 7 हो जाएगा 57 और 3 60 43 रिमेन सैलरी सेविंग। और क्लोथिंग का जो बात है वो है इतना, तो ये है 500। तो सेविंग अमाउंट 5 15 4 24 21 2 1 5, ये हो गया इसका आंसर। फिर है इन सर्टेन अमाउंट 10 सम बुक्स डिवाइडेड किशोरी जया विजया 15 11 और 14 किशोरी के एन भी टुगेदर 108 के एन भी टुगेदर 108 मोर देन 11 मतलब 8 है या 1 है तो 6 है। और इस नंबर में विजया 84 हो जाएगा फिर। और यहाँ पर डी आई आता है, फर्स्ट शो सेकंड शो थर्ड शो है, नंबर ऑफ टिकट मूवी पी, एवरेज नंबर पी एन, एवरेज नंबर पी एन मूवी क्यू, हाँ ये पी और क्यू, फर्स्ट 2 3 4 5 ये है, पी है क्यू शो है ना। टोटल है यहाँ पर फर्स्ट शो में नंबर ऑफ टिकट शो बाय पी। अच्छा पहले तो पी का लिख लो। फर्स्ट शो में 400 है, सेकंड शो में 240 360 और यहाँ पर है आपका फोर्थ और फिफ्थ है। यहाँ पर 360 के बाद 200 और ये है तुम्हारा 300 और यहाँ पर है तुम्हारा पी 360 720 तो 320 हो जाएगा। और साइज में क्या है सेकंड शो में 260 520 520 में 8 चौपा में 4 2 2 4। थर्ड में कितना है 600 600 में से 6 4 2 4 3 इधर हो गया 400 200 600 और ये हो गया आपका क्या था 10 है ना 20 320 मतलब 64 मतलब 4 4 0। फिर आपका लास्ट वाला में एवरेज क्या है 30
80, 28, 56, 56 मतलब हो गया 260। क्यू फर्स्ट सो सेकेंड तो हो जाएगा 8 2 और क्यू थर्ड फिफ्थ में 6 4 2 5 तो 6 5 हो जाएगा यहाँ पर रेशियो आपका। फिर सेकंड है और एवरेज नंबर पी 5 0 6 4 10 3 2 5 3 8 2 10 4 14 1 15 2 2 5 300 हो जाएगा ये। 1 थर्ड सोर्स बहुत थर्ड सो 360 पी का कितना है 200 और क्यू का थर्ड सो कितना था 240। ये कितना बेच रहा है 250 है ना। तो ये 72 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका एक काम करो 0 0 0 तो रहेगा ही 50 500 600 600 तो 2 700 13 200 हो जाएगा 13 200 हो जाएगा। अबे क्लिक तो हो जाए। नंबर ठीक है क्यू 400 हो जाएगा 440। हमस मतलब पी 400 में 220 200 110 110। अवेलेबल टिकट क्यू इन ईच शो इज़ 500। अवेलेबल नंबर टिकट इन ईच शो इज़ 500 ठीक है। परसेंटेज पूछेगा more than percentage number of available queue second so numbers for the available number of tickets for movie queue is 500 then what percent the number of available tickets movie queue in second show 300 200 number of is the number of ticket for that movie not sold in second show 44। okay after 19 years the ratio of x and y तो 3x minus 19 और 5x minus 19 जो है ये किसका किसका है x और y का सॉरी x और y जब है ही तो मैं p मान लेता हूँ 6x एगो x विल बी मतलब 3p माइनस 6x एगो का बात किया -6 मतलब हो जाएगा 25 इक्वल टू 1/5 टाइम्स एज ऑफ y मतलब 5p माइनस 25 15p माइनस 125 इक्वल टू 5p माइनस 25 तो 10p इक्वल टू 120 100 सॉरी तो p इक्वल टू 10 हो जाएगा तो 30 में से 19 जाएगा x का एज हो जाएगा 30 में से 19 घटा दो तो 11 अरे 50 में से 19 घटा दोगे तो इतना हो जाए 31 तो किसका पूछा है y का 31 साल हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर है अंकिता का कुछ केस है उसको लेके मैं आगे बनाऊंगा। और क्या है द अंकिता हैज़ लैपटॉप सेम कॉस्ट अंकिता हैज़ 2 लैपटॉप सेम कॉस्ट मतलब मान लीजिए ए और बी 2 लैपटॉप है सीपी जो है दोनों का पी और पी है एंड सी सेल्स लैपटॉप 8% लॉस 8% मतलब कितना हो गया 4 दूनी 8 4 25 तो 25p इसका सीपी था और एसपी कितना है तो यह भी 25p होगा सॉरी 25p 23 एसपी हो गया एंड अनदर लैपटॉप इसको प्रॉफिट में बेचा है कितना में तो 12 और 28 में बेचा ठीक है। सी रिसीव इतना आफ्टर सेलिंग बोथ सकता मतलब ये सी रिसीव्ड इतना आफ्टर सेलिंग बोथ द लैपटॉप 50p और 8 3 11 2 4 5p ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना इसी के बारे में बात किया जा रहा है 4 6 9 2 0 8 नहीं 9 45 तो क्या बोलना है इसको एक लैपटॉप का प्राइस कितना है इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो
कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 9 45, 46, 6,813, 23,000 करके एक का लैपटॉप पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सम डाटा मिसिंग कोई भी। टोटल नंबर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बेकरी सोल्ड बाई स्टोर 2021, टोटल नंबर तो 33 हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन है कुछ। इफ 2020 यहाँ का बात कर रहा है। इन 2020 प्रोडक्ट सोल्ड बाई स्टोर इन 2020 इज 80% ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड, बेकरी प्रोडक्ट्स 80% ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड बाई द स्टोर इन 2020। मतलब इसका क्या बोल रहा है? 80%, यही बोल रहा है ना? ये यही फाइनल नंबर 1,20,000, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, इधर रेशियो नंबर ऑफ यार ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट एंड बेकरी प्रोडक्ट सोल्ड इन ईयर 2022, 3 8 फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड इन 2022, 9,000। टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय 2023 इज 1,800। रेशियो द प्रोडक्ट रेस्पेक्ट बेकरी डेयरी टू से रेस्पेक्ट टू बेकरी, फाइंड द नंबर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट 2 3 6 12। If the price of the dairy product 7, then the revenue collected 90% sold dairy products in 2021, 90% of the sold dairy products, 9,900, 7,963, 7,963 6 99, 693। अबे रेशियो डेयरी प्रोडक्ट सोल्ड इन द ईयर 2020 150, बेकरी 2022 नहीं 2022 तो यहाँ 240, 3 5 3 8, 5 8 हो जाएगा यहाँ पर। ये 5 8 ही है ना? ओके, क्या रह गया भाई? 24 नंबर नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, इसको देखना था। 15 3 4 3 7 33, 9 3 12 6 7 9 8 6। अच्छा, ये ऑल्टरनेट जा रहा था, सॉरी। 125 140 173 192 2 5 2, ठीक है। ये जा रहा है आपका 8 5 13 7 6 4 2 6, फिर ये कुछ होगा। फिर यहाँ पर आपका एक देख लीजिए कितना गैप हो रहा है, कितना 48 40 है ना? मतलब 2 5 52, और ये कितना आया है आपका 0 9 6 15 52, 8 8 का गैप है। मतलब 56 हो सकता है। 56 मतलब 6 3 9 और 7 5 12, 200 229। कोई गलत नहीं बोल सकता इसको। ये कितना 6 नंबर मुझसे नहीं होगा। चलो, जहाँ तक मुझे मेरा हो सकता था पॉसिबल मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि अच्छा पेपर था। इंग्लिश काफ़ी लेंदी था आरसी, इसका आरसी पार्ट काफ़ी थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लग रहा था। बाकी क्वांट्स अच्छा है, रीजनिंग पता नहीं क्या होगा। 32 अटैम्प्ट हो पाए हैं मेरे। और ये क्या, ठीक है, कंटिन्यू टेस्ट इन रो। 1 नंबर के लिए अभी इतना जद्दोजहद नहीं करना है। और यहाँ पे स्टडी 9 फ्रेंड्स स्टडिंग सर्कल, फ्रेम सर्कल हो जाएगा 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। T5 टू द राइट ऑफ आर, तो आर यहाँ 1 2 3 4, टी यहाँ हो जाएगा। T5 टू द T6 टू द राइट ऑफ आर, एन इज नॉट इमीडिएट नेबर, इधर आर टी, मतलब यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, एन यहाँ हो सकता है, और एन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कंडीशन है एन का। एम इज़ नेबर ऑफ एस पी, एम इज़ ए नेबर ऑफ एस पी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एन इज़ फोर टू द लैपटॉप पी, फोर टू द लैपटॉप पी, एस, ये कौन है भाई? एम,
ठीक है। M is a neighbor of SP, N is 4 to the left of P, O second to the right of Q, O second to the right of Q, S is not immediate neighbor of T, हाँ अरे तेरी S P, M is not यार भाई क्या था भाई, N is not neighbor N is 4 to the left of P, 1 2 3 N is 4 to the left of P, N is 4 to the left of P, and M is immediate neighbor, M is a neighbor of SP, M is a neighbor of SP. इसके बाद क्या था, वही सेकंड टू द राइट ऑफ Q, यहाँ पे क्या रह गया, LMN L रह गया, मिला लो क्या आगे, ठीक है। T is P to the right of R, 1 2 3 4, T is P to the right of R, N is not immediate over RT, N is not immediate over RT, ठीक है नहीं है। M is a neighbor of SP, M is a neighbor of SP, ठीक है। N is 4 to the left of P, 1 2 3, N is 4 to the left of P, O is second to the right of Q, O is second to the right of Q, S is not immediate over T, ठीक है हो गया। O is second to the right of M, तो M के second to the right में R है। You solve all 9 friends made clockwise from L, clockwise मतलब ऐसे ही होगा, टिक 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 टिक, 100% MNOPQRST 2 हो जाएगा। 4 LP, L और P शायद, L सेकंड टू द राइट, S के सेकंड टू द राइट में Q, ओके ये लग रहा है कि दोनों में से A B में से कोई एक होगा, ठीक है। सेकंड टू द राइट में S, SP, LP, LP एक का गैप, SP एक का गैप, TS 2 का गैप, LN एक का गैप, भाड़ में जाओ तुम। उस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू M इन एंटीक्लॉज फ्रॉम M, इधर से एंटीक्लॉज है, वो विद रिस्पेक्ट टू M, 1 2 3 4, 5 टू द लेफ्ट 5 टू द राइट, वो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T ने L। भाई एक तो क्लरिकल पेपर, उसमें क्वेश्चन तो दिया ही इसको थोड़ा सा ऊटपटांग सा कॉम्प्लेक्स टाइप्स, और ऊपर से इसका अरे ये माउस एग्ज़ाम जैसा रिएक्ट किया है, मतलब ये हाल है इसका। और हॉर्न का यहाँ पर है क्या, बॉन जॉन बॉन बॉन बॉन, हॉर्न किधर है, एक हॉर्न यहाँ पर है और हॉर्न कहीं नहीं है, तो 1 नहीं होगा, शुड हो सकता है, नॉट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तो शुड हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ ट्रस्ट का क्या होगा, ट्रस्ट यहाँ है, ट्रस्ट का यहाँ है, तो दोनों में क्या है, फोन नहीं होगा, कॉन नहीं होगा, गॉन नहीं होगा, कॉन CON, ये हो गई। आई बिलीव टोनी, ओके टोनी 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 टोनी, ओके आई कहाँ है, आई यहाँ है, आई आई, तो हो जाएगा कौन, कौन बिलीव का है, बिलीव बिलीव, कौन और क्या हो सकते हैं दोनों में कॉमन, गॉन मॉन बॉन हॉर्न हॉर्न हॉर्न, आई बिलीव, टी टोनी इधर है, टोनी कौन नहीं होगा, डॉन डॉन है, टोनी टोनी तो डॉन है भाई यहाँ तो, कौन हॉर्न डॉन, ऐसा लग रहा है चाइनीज़ मूवी जापानीज मूवी देख रहा हूँ, कौन हॉर्न डॉन, कौन हॉर्न डॉन, कौन हॉर्न नहीं, कौन हॉर्न डॉन, भाई नहीं, कौन हॉर्न डॉन भाई तेरी। इस ऑड नंबर, ऑड डिजिट 6 3 2 5 8 7 1 4, ऑड डिजिट्स सब्सटीट्यूट द नेक्स्ट हायर डिजिट्स, अच्छा 4 6 8 2, इवन प्रीवियस लोअर डिजिट्स 5 1 7 3,
असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अबे थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 3 हो जाएगा, यही होगा आंसर। देखो कैसा माउस काम कर रहा है। रिलेशनशिप हेंसी क्या है? अरे बाप रे, गजब गजब क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, इसको बना लेना चाहिए। 10% सिटिंग रो सच 5 देम आर सिटिंग रो 1, ठीक है। रो 1 साउथ 1 2, ये 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 2, ठीक है। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु फेसेस G, G को जो फेसेगा तो H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G हु फेसेस G, G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I, G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I हो गया। I फेसेस B, I फेसेस B हो गया। B हु फेसेस साउथ, उल्टा हो गया। ओके सो G, H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस G, सॉरी उल्टा क्या कर रहे हो यार, अब जब भी पता चला कि जी इधर दिखेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी वॉज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस जी, जी वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस जी, I faces B, B faces south. A is neighbor of DE, A is neighbor D E E D, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। E faces C, C is not neighbor of B, F was not extreme end। और भी कंडीशन कुछ दे दो, है। फॉर J एंड E एंड C एंड H मिडिल, G भी एंड में है। वो जैसे फेसिंग नॉर्थ G I D A E, only 2। A was sitting dash to the seats opposite to the H, who was second to the left of B, who was sitting immediately left of J, B, who was sitting over the position D with respect to F, opposite, okay। Some eyes are wall, some walls are deal, some deals are jet, some J are no, some D are E no, some J are E no, सॉरी यहाँ इधर और लगेगा, नहीं इधर और नहीं लगेगा, तो आप आ जाओ नन में, नन मतलब एक, है ना। और फिर ऑल C are R, ऑल R are B, some B are F, सम एफ आर आर नहीं पता अभी तक, और सम बी आर सी, हाँ ये तो पता है। और यहाँ पर है सम एफ आर सी, नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ओनली 2 का ऑप्शन अगर दिख रहा है वो कहीं पर तो आप लगा दीजिए उसको। उसके बाद है ऑल सी आर, ओके। सो एक काम करो, यहाँ लिख दो क्लीट, है ना। ऑल क्लीट आर flaps, all flaps are octals, some octals are cleat, हाँ। some flaps are cone, yes, some octals are cone, सब होगा इसमें, पॉजिटिव है ना, इसमें सारा कुछ होगा। ओके 8% इज डिफरेंट वेट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। D is heavier than B, D is heavier than B,
Only one person weight less than C. The weight of E is more than A, but less than B. Weight of F is less than H. F is less than H, but more than D. E is heavier than G. E is heavier than G. ये है कंडीशन. काफ़ी कम है, कोई बात नहीं. आप एक काम कर सकते हो, डी से नीचे बी है तो बी को मैं रख लेता हूँ लास्ट में, और डी एफ लेके चलना पड़ेगा. बी ई ए है, बी ई ए है, और इसके बाद कैसा रहेगा ये वाला ई जी एच एफ डी. तो ये एच कहाँ चल गया, डबल कुछ हो गया क्या, कुछ डबल हो गया. ये बी सी डी ई एफ बी डबल हो गया. डी बी ई जी एच एफ डी. ओके, एच एफ डी बी ई जी ए जी. ई और जी, ई है ये वाला, ठीक है. ई जी एच एफ डी एच, अच्छा सॉरी ये एफ है. एच एफ ई जी के ऊपर ये तो दोनों कंडीशन है. एच एफ डी, ठीक है. बी ई ए ये भी दोनों कंडीशन में फुलफिल करेगा. डी बी इमीडिएटली तो नहीं था ना किसी का, या नहीं था. डी ऊपर सब कंडीशन शुरू है. हाउ मेनी परसेंट हेवियर देन ए, तो ए से इतना है कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा यहाँ पर. नंबर ऑफ पर्सन वेट इज मोर देन बी इज सेम. 1 2 3 1 2 3 ई. ओके, 2 नंबर के लिए काफ़ी समय मैंने दिया, ये गलत हुआ. और के 8% 14 मार्च, बट नॉट, ये टाइम लगेगा यार, इसको काफ़ी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आसान हो सकता है. कर लो क्या, काफ़ी पेजेस किया यार इस टेस्ट में. 1879 92 99 1901 17 34 50 53 1 2 3 4 5 6 7 8. बेस ईयर क्या दिया है, बेस ईयर है ही नहीं, गलत हो गया भाई. डी वॉज बॉर्न इन 1999. डी यहाँ पर कंफर्म्ड है. डी वॉज बॉर्न 1999 बिफोर एच, मतलब एच ये दोनों जगह में छोड़ो ना, एच यहाँ नहीं होगा, एच यहाँ नहीं होगा. एफ वॉज इमीडिएटली आफ्टर ई, एफ वॉज इमीडिएटली आफ्टर ई, एंड डिफरेंस इन दियर इज 17. ठीक है, यहाँ 17 साल है क्या, 7 2 9, अरे 9 9 3 12 13 साल है. यहाँ पर नहीं है, 9 2 11, यहाँ पर 19 16, यहाँ पर है ई एफ, ठीक है. और कहीं हो सकता है 7, ये 50 और 53 है. यहीं पर 17 साल का ऑप्शन है. जी इज यंगेस्ट, तो जी यहाँ है. 2% बी एंड सी, बी इज एल्डर देन सी. क्या है इसमें, अब इसमें बोला एच नहीं हो सकता, तो एच यहाँ होगा, समझा, इसीलिए ये होगा नहीं. अब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए हो जाएगा यहाँ पर. देन 1934 में जो है आपका बॉर्न है एफ. हाउ पर ए एच एन ए 1 2 3 4 4 हो जाएगा. फिर डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी, सी यहाँ है और ई यहाँ है, तो हो जाएगा 7 4 24 साल ना. 17 19 01 6 1 16 साल का है, सॉरी. फिर चौथा फॉलोइंग क्लस्टर सी एक्स वाई क्यू आर यू वी वी डब्ल्यू एन ओ. सी और एक्स
XYZ ABC, XYZ ABC, नहीं ऐसा तो नहीं है। अरे यार 3 मिनट बचा है, ये वाला हो जाना चाहिए था। Sila started from S, moved to west, 1 meter north. O reach O from O, moved 6 meter west to reach R, 6 meter west to reach R. From R she moved 3 meter south, 3 meter south to reach N. She took right turn 4 meter to reach Q. Again took right turn 3 meter. From M moved east direction to 2 meter to reach P. Which of the northeast of the direction point respect to N? N किधर अब खड़ा था N? तो एक ही तो S और O, 1 and 3. Okay. What is the short distance R and Q? R और Q का 16, 9, 25, 5. Which of the respect N with respect to M? N किधर खड़ा था यहाँ? साउथ ईस्ट. ये तो नहीं था ना? नहीं था. हाउ मनी मेल फीमेल मेंबर आई हैव ओनली 1 डॉटर. आई हैव, मेरे पास सिर्फ एक लड़की है. आई हैव ओनली. एन इज़ द मदर ऑफ एम. एन इज़ द मदर ऑफ एम. जे के आर सिबलिंग ऑफ एम. जे के एल आर सिबलिंग ऑफ एम. जे के एल आर सिबलिंग ऑफ एम. जे के एल कितना भाई बहन है. एल इज़ द डॉटर ऑफ आई. चलो I have only 1 daughter. L is a daughter of I and sister-in-law of O. किसी का भी हो सकता है. M is married to O. अबे साली. How many female member? 1, 2, 3. How related to I? वो तो उसका daughter-in-law है. क्या लगता है दोस्तों? 1 मिनट का टाइम बचा है. 2 नंबर का हो सकता था. पूरी हो रही है यहाँ पर. क्या हो रही है? 8 पेपर फेसिंग 8 पेज फेसिंग स्क्वायर टेबल बनाना था भाई. फेसिंग स्क्वायर फेसिंग टू 1 पर्सन सिटिंग कॉर्नर टेबल, 1 पर्सन सिटिंग मिडिल साइड. 4 5 6 7 8. U is third to the right of W. W second to the left of P. W second to the U is third to the right of W. V is corner of the table immediately to the left of R. 3 people P and Q. Q is ascend to T. R is second to the right of U. Who is sitting fifth to the left of S? 1 2 3 4 V. H C C D E F नहीं. Y Z A B R S T U नहीं यार. ये क्या लग रहा है? C का 3, X का 3. ठीक है. J Q. Q का होता है आपका 17 और J का कितना होता है? नहीं, J का 17 और इधर 7 Q का. तो सही है. U का होता है आपका U का 6. अरे ख़त्म हो गया भाई. अरे भाई साहब रॉन्ग हुआ इंग्लिश में. 11 रॉन्ग. लो अभी तक का सबसे घटिया टेस्ट. बहुत ही ख़राब. इंग्लिश में काफ़ी रॉन्ग हो गया यार. एक्सपेक्टेड नहीं था इतना. और क्वांट्स और इंग्लिश सही है, पर क्वांट्स में भी 2 रॉन्ग मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर है. 70 स्कोर बना है मेरा ओवरऑल. आप लोग बताइएगा कैसा था. हालांकि जो है मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में आपका अगर 76 से 80 का बीच में आता है तो आप एक अच्छे रेस में हो, और इसके कम में हो तो आप क्या ही बोला जाए. मेरा खुद का कम आया है. इसमें मेजर स्कोरिंग पॉइंट जो है, अगर किसी का स्कोर इम्प्रूव अगर होगा तो वो इंग्लिश से होगा. इंग्लिश में मैंने यहाँ पर 28 अटैम्प्ट किया है.
तो अगर इसको अगर 25 भी अटेम्प्ट किया जाए सही, 25 मैं बोल रहा हूँ 20, तो 20 नंबर बिल्कुल आएगा, मतलब कि 76 मैंने सही जोड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल 76 नंबर, 76 to 80 नंबर इसमें आना चाहिए। तो मतलब 20, अगर आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश में बना रहे हो, अगर वो भी 99 या 95 to 99% एक्यूरेसी के साथ, तो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें 18 नंबर मिनिमम आपको लाना चाहिए इस सेक्शनल इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट में, सेक्शन में। तो खैर यही था ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस टेस्ट का। थैंक यू वेरी मच।